Business Morning is brought to you by BSE IPF. नमस्कार, बिजनेस मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज हम बात करेंगे इकॉनमी टुडे की, क्योंकि आज रामनवमी के अवसर पर जो बाजार हैं, शेयर बाजार हैं, वो बंद हैं। और इकॉनमी टुडे यानी आपकी जिंदगी से जुड़े आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए, क्योंकि पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम है, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान रखिए, आज का प्रोग्राम खास है, खास दो वजहों से, क्योंकि आज 1 घंटे का प्रोग्राम है और हमारे जो 2 खास मेहमान हैं वो आपके लगातार सवालों का जवाब देंगे। और जो आज चर्चा है वो जीएसटी के आगे की राह क्या है और जो जीएसटी के नए नियम आए हैं उनका मतलब क्या है आपके लिए, हमारे लिए जमीन पर। तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल करते हुए आप ट्वीट कर सकते हैं अपने सवाल इस कार्यक्रम में। और ध्यान रखिए कि इस प्रोग्राम में आज आपका सवाल जीएसटी और उसके भविष्य से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप जीमेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं, economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल का पता है, जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। जीमेल और ट्विटर दोनों ही जरिए से हम आपके सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मनीष कुमार सिन्हा जी, जो कि कमिश्नर हैं सीबीईसी में। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव शायद आपसे बेहतर वॉइस हो नहीं सकती, क्योंकि नए नियम बनाने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही है और इसलिए आपका यहाँ पे होना खास है। साथ ही प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा आप लगातार इन्हें सुनते रहे हैं, खास इकॉनमी टुडे में ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इकॉनमी टुडे। So the GST Council at its 13th meeting in the national capital finalized 9 sets of rules for registration, refund, return, payment, invoice and debit and credit. The next meeting will take place in Srinagar on 18th and 19th of May, but that's when they will categorize the goods and services, a process that is called fitment. But what are these new rules? What exactly is the finance minister has said? What exactly is the revenue secretary has said? Let's have a look at all those details in this report. With the passage of GST in Lok Sabha, the government is in top gear to implement the landmark tax reform from 1st of July. The GST Council approved the draft of 4 sets of rules and finalized 5 others, bringing India closer to one unified tax regime. The council, headed by Finance Minister Arun Jaitley, approved the draft rules relating to composition, valuation, input tax credit and the transition process. Framing of rules are mandatory to activate laws. The council has decided that the final corrected draft as approved today will be put up in public so that the industry, if it wants to make any suggestions, can do so. And if any changes are required on basis of the industry suggestion, once we incorporate the suggestions, if any, then this tentative approval that we made today would in the next meeting be taken up for consideration and affirmed and become a final approval itself. The council gave approval to 5 sets of rules, namely registration, refund, return, payment, invoice and debit and credit rule. 5 rules, amended drafts were circulated today and a final approval was granted on the amendments which have been made in terms of the enactments itself. So today, as the position stand, out of the 9 set of rules, the original 5 which we had approved have been corrected in terms of the amendment and brought in consonance with the Act. Those now become final. The 14th GST meet will take place in Srinagar on 18th and 19th of May. Agenda of the meet will be categorization of commodities under various headers, also known as fitment. This is the second time the GST Council will happen outside Delhi, and people can calculate the tax themselves. अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल अभी 16-17% का टैक्स लग रहा है तो वो 18% के स्लैब में ऑटोमेटिक आएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपने आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं
कुछ ऐसी कमोडिटी होगी कि जिसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम कि भाई 18 रखना है कि 12 रखना है, उस तरह का डिसीजन कुछ कमोडिटी में हो सकता है। GST will turn India into one common market, leading to a greater ease of doing business and big savings in logistical costs from companies across all sectors. The current indirect tax structure is a major impediment in India's economic growth and competitiveness. Tax barriers in the form of CST, entry tax and restricted input tax credit have fragmented the Indian market. GST will facilitate ease of doing business in India. Integration of existing multiple taxes into single GST will significantly reduce costs of tax compliance and transaction costs. Siddhant Sibbal, DD News, New Delhi. So those were the highlights of the 13th GST Council meet. So after these 13 meetings, we are inching towards the reality. But what exactly is the road ahead? In fact, Mr. M.K. Sinha could be explaining that. Mr. Sinha, what exactly is the road ahead? Because there is the 14th meeting that will be taking place in Srinagar in the month of May. Much time. So how do you think the GST will be going forward from now on? Going forward from here, major rules and law are in now place. Industry has been given the key set of 4 rules which they were demanding so that they can do their own automation process. Those rules are valuation, credit flows, composition, and in the past 5 more rules have been given. So the industry now is in a position to gear up, prepare its software, and from the stipulated date GST can be rolled out. Legislative process is complete. These rules are subordinate legislations, and therefore government will be in a position to notify it as and when it is required to be notified. As far as rates are concerned, 2-day meeting has already been announced by the Honorable Finance Minister. On those 2 days, the commodities will be given the rates at which they will be taxed, and once the rates are also fixed, the entire structure from the government side is ready. IT platform is also in fairly advanced stage. GSTN is also in fairly advanced stage. Administrative structure restructuring from the central government is also in fairly advanced stage. So as far as central government is concerned, the preparation for rollout of GST is complete in almost every respect. Right. Mr. Sinha, when we talk about the fixation of rates, it is not as simple as it looks. But then, is the work going on parallelly, or will it be started, and then how will it actually the whole process of fixation of rates go? See, for fixation of rates, there is a committee called Fitment Committee, which has already been constituted, which has members from both central and state government. The committee is already doing its work in the background, and a tentative fitment would be done by the committee before it is placed before the ministerial committee. GST Council is essentially a political executive kind of legislative body. So before anything goes there, a lot of back-end work which is to be done, and officers committee is doing that work, and when it reaches Srinagar, they will be presented with the proposal, and after examination and applying their political wisdom, rates will get finalized. मनीष जी, क्या कुछ जो नए नियम हैं उनके मायने हैं वो तो हम आपसे समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट की आज पहली बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। 45,000 करीब जो स्कूल्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। 1 जुलाई तक किताब, स्कूल ड्रेस और बैग दे दिया जाएगा। ये आदेश जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से, और सरकार प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नया बोर्ड भी बनाएगी। कुछ बड़े फैसले हुए हैं। पंकज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से सीधे। पंकज जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं, और कैबिनेट से पहले इन फैसलों का होना क्या मतलब है इसका? नमस्कार अजय, जैसा आपको मालूम है कि कैबिनेट होने से पहले ही बहुत सारे प्रशासनिक निर्णय उत्तर प्रदेश में लिए जा चुके हैं। सरकार पूरी एक्शन में है। कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बहुप्रतीक्षित मीटिंग आज होनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जो रात तक ये मीटिंग चली है, जिसमें कि शिक्षा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया, जिसमें पूरी मंत्रिपरिषद भी थी और सारे अधिकारी थे,
प्राइमरी एजुकेशन के, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के। सबने जो प्रेजेंटेशन दी उसके आधार पर जो है मुख्यमंत्री ने कुछ निर्णय किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि प्राथमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है कि नियुक्तियों में जो है प्राइमरी स्कूल्स की नियुक्तियों में, टीचर्स की नियुक्तियों में किस तरह की जो है अनियमितताएं सामने आ रही थी, और अभी भी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सरकार ने अपना एफिडेविट दे रखा है। उसको नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ने किया कि हम प्राथमिक शिक्षा चयन बोर्ड बनाएंगे और उसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही जो एक बहुत और भी बड़ा फैसला यह है कि प्राथमिक शिक्षकों की जो उपस्थिति है वो स्कूलों में कैसे सुनिश्चित की जाए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दे दिया है कि सारे स्कूलों में बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस सिस्टम लगाया जाए, जिससे कि प्राथमिक शिक्षक वहां आए और उनकी जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जा सके। इसी की तरह नकल माफिया को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एफआईआर सारे ही जितने भी सेंटर हैं जहां भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि वहां नकल कराई जा रही है और मास कॉपिंग कराई जा रही है, उस पर जो है उन सब पे एफआईआर दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और फ्यूचर में कभी भी उन पर कोई सेंटर न रखा जाए। इसी के साथ ही प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अजय हुई है वो ये है कि पिछली सरकार में आपको मालूम होगा कि अक्टूबर नवंबर तक किताबें भी नहीं मिली थी बच्चों को सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, और ये कहा गया कि अभी छपाई होने में देर लग रही है, और वो पूरी जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उनकी वो बिना किताबों के ही उनको देनी पड़ी थी। और इस बार सरकार ने उसी को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया है कि 1 जुलाई तक सभी स्कूलों में जो है स्कूल किताबें, बैग और जो भी शिक्षा से संबंधित सामग्री वो सभी उनको मुहैया करा दिया। इसके सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने कर दिए। तो जो कल मीटिंग चली उसमें महाविद्यालयों को लेकर, विश्वविद्यालयों को लेकर भी कई सारे निर्णय लिए गए। जैसे आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से सत्र का विनियमितीकरण है, नियमित सत्र होते नहीं है विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, उसको लेकर भी कहा गया कि सत्रों का नियमितीकरण किया जाए और जो सारे करिकुलम है सारे राज्य विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों को जो उत्तर प्रदेश में, सबको एक समान बना दिया जाए। तो इस तरह के कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कल रात में जो बहुत देर तक मीटिंग चली, करीब 1 बजे तक वो मीटिंग चलती रही, जिसमें सीएम ने सारे निर्णय लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में सुधारने का कई सारे निर्णय लिए गए। पंकज जी, आपने सुधार शब्द का इस्तेमाल किया और हम लोग भी यहाँ पे जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं। शायद सुधार की वहां जरूरत होती है जब बहुत बड़ी गड़बड़ी कहीं किसी क्षेत्र में देखने को मिलती है और इसीलिए आप रिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पहली सरकारों में हमने देखा कि लैपटॉप बांटने से लेकर के कुछ साइकिल देने से, सुविधाओं से लेकर के कुछ चीजें जरूर की गई थी, लेकिन यहां पर जो फैसले हो रहे हैं पंकज जी, वो ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आपने कहा कि तीनों ही स्तरों पर अब सरकार कुछ बड़े फैसले ले भी सकती है और जिसकी शुरुआत अभी आज के फैसले में हो गई है। तो क्या माना जाए कि ये जो रिफॉर्म की दिशा है वो किस तरह से नई सरकार को नए मायने देती है, नई तरह से परिभाषित करती नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक कहा जाए आपने। जो रिफॉर्म की बात है, इतनी ज्यादा अव्यवस्था पूरी शिक्षा व्यवस्था में हो चुकी है कि उसमें बेसिक्स को ठीक करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। और ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई उसमें से जो बहुत सारे निर्णय लिए गए उसमें से कुछ निर्णयों की मैंने बात की, और ये सारे जो निर्णय कल लिए गए उनको 100 दिन के अंदर पूरा करना है। तो एक तरह से जो है मुख्यमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा भी रखा है कि 100 दिन के अंदर हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं और उसके बाद उनकी समीक्षा होगी। तो ये जो निर्णय उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जो पहली प्रेजेंटेशन थी कल योगी सरकार के सामने जो पहली प्रेजेंटेशन हुई उसमें ये सारे निर्णय लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जैसे मैंने कहा कि पूरी मंत्रिपरिषद वहां उपस्थित थी। अगर हम विद्युतीकरण की बात करें प्राइमरी स्कूलों में तो उसमें ऊर्जा मंत्री भी उपस्थित थे, उनको भी निर्देश दिया गया कि विद्युतीकरण जो है प्राइवेट स्कूलों में कराया जाए। तो इस तरह से जो पूरी कैबिनेट को साथ लेकर कोई एक निर्णय जो है वो साइलोज में नहीं हो रहे हैं। जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो सारी कैबिनेट के और संबंधित मंत्रियों के साथ में लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो है जी हाँ पंकज जी, लेकिन अब वो बड़ा सवाल जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो पहला वायदा कैबिनेट में किया गया था कि छोटे और सीमांत किसानों का जो कर्ज है उसको माफ किया जाएगा, उसको लेके सभी इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ संकेत ऐसे मिले हैं कि उस दिशा में कुछ तैयारी है सरकार की जिसके बाद ये फैसला आज जनता के सामने रखा जा सकता है? जी अजय, ये बहुत ही बड़ा फैसला है और एक तरह से जो है बीजेपी के संकल्प पत्र में इसका मेंशन भी हुआ था। बड़ी ही प्रमुखता से सारे ही नेताओं ने कैंपेन के दौरान इसको उठाया था। प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो रैली करी थी 13 फरवरी को लखीमपुर खीरी में, उसमें भी उन्होंने इस मुद्दे को कहा था कि पहली ही कैबिनेट बैठक में इस कर्ज माफी की घोषणा की जाएगी जो लघु और सीमांत किसान है। और इसीलिए जो है करीब 16 दिन का डिले हो गया पहली कैबिनेट करने में कि जो इसमें जितनी व्यवस्था करनी है, चाहे वो धन की व्यवस्था करनी है, प्रोसेस क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, उन सबको देखते हुए आज शायद वो जो है कंसेप्ट नोट या पेपर आएगा जिसमें मंत्रिमंडल कोई निर्णय लेगा। अजय, एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से हम बोरोइंग
बोरिंग की बात करते हैं जब कभी भी, तो उसमें जो है आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी आ जाता है, जिसमें अगर उनको केंद्र सरकार से कोई पैसा लेने की बात होगी तो करीब 62,000 करोड़ का मामला है। अगर हम देखें पूरे किसान जो उत्तर प्रदेश के हैं, करीब 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, जिसमें से करीब 1 करोड़ 85 लाख जो है वो सीमांत हैं, करीब 35 लाख जो है लघु किसान हैं, तो कुल मिला के 15-20 लाख किसान ऐसे ही हैं प्रदेश में जो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम 62,000 करोड़ की जो ऋण माफी की बात करें तो पूरे जो रेवेन्यू है सरकार का वो करीब 10 से 15% बैठता है, जो हम एक मोटा हिसाब लगाते हैं। तो ये बड़ा निर्णय होगा और उसके लिए कैसे बजट की व्यवस्था की जाएगी, उसमें जो एक्ट है 2003 का उसको कैसे उसमें हम कैसे लेते हुए साथ चल सकते हैं, क्योंकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। फिस्कल डेफिसिट को मार्च 2018 तक 3% कम करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, तो केंद्र सरकार देगी वो पैसा, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगी कि बोरिंग कहीं और से आएंगी, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से जो बोरिंग की है उसको अपने रेवेन्यू को कैसे एडजस्ट करेगी, ये देखने वाली बात होंगी। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से पक्की है कि आज जो है पहली कैबिनेट में किसानों की ऋण माफी होना तय है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए और इस एनालिसिस के लिए भी कि किस तरह से अर्थ नीति और राजनीति या फिर जो संकल्प पत्र की जो नीतियां हैं, जो तमाम फैसले लेने हैं, उसमें कैसे सामंजस्य बैठाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। और आज शायद एक बड़ी चुनौती आज शाम के जो 5 बजे की कैबिनेट है उसमें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे जीएसटी पर, और जीएसटी के जो तमाम अधिनियम और नियम जो अभी फिलहाल जनता के सामने हैं उनकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे अपने दो मेहमानों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, इकोनॉमी टुडे लगातार जारी है। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूँ सूर्यदेव, एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. आप देख रहे हैं हमारा खास इकोनॉमी टुडे और आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी के जो नियम हैं वो सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। प्रोफेसर वल्लभ, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हम लगातार पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं कि जब जीएसटी आएगा 1 से 1.5% जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये समझाएं हमें कि ज़मीन पर कैसे ये चीज़ें होंगी, कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और कैसे लोगों को फ़ायदा होगा। जीडीपी में इंक्रीमेंट और राज्यों पर जो असर है उसको थोड़ा सा समझाएं। देखिए, 2-3 बड़ी चीज़ें मैं पहले बात करता हूँ। जीएसटी के आने से एक तो यूनिफॉर्म मार्केट है, तो इसको अगर बहुत ही साधारण शब्दों में बताएं तो एक मोबाइल ऑपरेटर है, वो हर स्टेट का रोमिंग लेता था, ठीक है। अब उसने पूरे भारत को एक ही मान लिया, तो आप कहीं से कहीं कॉल करो, चार्जेज एक ही है भारत में, तो कहीं से कहीं चीजें मूव करो, स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर एक है। उसके कारण 3 चीजें हैं। भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो इमर्जिंग नेशंस में सबसे ज्यादा है, और हमारी जो ट्रकिंग, जिससे कि लगभग 65 to 70% माल मूव करता है, वो 45 से 50% समय ऑफ द रोड रहते हैं, ओके, क्योंकि उनके एंट्री बैरियर्स है, उनके मूवमेंट में हर्डल्स है। अब ये अगर यही लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर सेव कर लें तो निश्चित रूप से
जो बेसिक कमोडिटीज है उनके दाम निश्चित रूप से काफी कम हो जाएंगे। 10 से 15%। मैं FMCG की बात कर रहा हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पहली बात। अब दूसरी बात है कि आपका अगर यूनिफॉर्म मार्केट रहता है तो अभी क्या होता था जीएसटी के पहले कि कुछ टैक्स लगाए जाते थे भारत सरकार द्वारा, कुछ राज्यों द्वारा, तो वो आपस में एक दूसरे से क्रेडिट नहीं ले पाते थे, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स वास्तविक रूप में लागू नहीं हो पा रहा था। अब क्या है कि अगर इनपुट क्रेडिट मैंने कोई दिया है तो मुझे वो आगे मिलेगा, तो अगर ये आगे मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं जो फाइनल कंज्यूमर है उस पर कम चार्ज करूंगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या हो रहा था कि अभी के स्ट्रक्चर में टैक्स ऑन टैक्स, मतलब 100 रुपए का मान लो प्रोडक्ट है, उस पे 15% मान लो एक्साइज लग गई, फिर 115 हो गया, उस अब 115 पे स्टेट वैट लगा रही है, तो ये अब टैक्स ऑन टैक्स, तो इससे चीजें, तो ये तो हुआ कंज्यूमर के लिए कि भाई जो बेसिक प्रोडक्ट्स है उनके दाम काफी कम हो गए। सेकंड चीज कि हम विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कंपिटिटिव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी इन सब कारणों से। तो एक अनुमान के मुताबिक कि जीएसटी आने मात्र से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो 15% बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीजें जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। तो जीडीपी 1% बढ़ेगी, 1.5 बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी, इसका तो आकलन एक फोरकास्ट किया जा सकता है, पर निश्चित रूप से जीडीपी में पॉजिटिव स्टिमुलस जरूर आएगा इस जीएसटी के आने के बाद। मनीष जी, अब हम थोड़ा सा जो कंपोजिशन लेवी है उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो छोटे लोग हैं उनको कैसे आपने जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की कोशिश की है और उसके संबंधित नियम क्या हैं अगर कोई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो। देखिए, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स में जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि आपकी जो इनपुट्स होती हैं, जो चीजें आप लेते हैं, उस पर जो टैक्स है, जो फाइनल टैक्स आपको पे करना है फिनिश प्रोडक्ट से, उसमें से वो सेट ऑफ कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन का कैलकुलेशन होता है, इस प्रकार से वैल्यू एडिशन का निर्धारण होता है। लेकिन जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं उनको इस तरह का वैल्यू एडिशन करना, उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिटर्न फाइल करना है, इन चीजों में दिक्कतें आती हैं। इसलिए वो एक सरल रिटर्न चाहते हैं, सरल तरीका चाहते हैं जिसके मार्फत वो टैक्स पे कर सकें। तो इसके लिए उनके टर्नओवर पे एक टैक्स लगा दिया जाता है। तो कॉम्पोजिशन के तहत एक टर्नओवर के प्रकार से टैक्स लगा दिया जाएगा, जहां उनको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे वैल्यू एडिशन नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनका टर्नओवर जितना हुआ है उस पे वो जितना दर तय होगा उस दर से टैक्स पे कर देंगे। तो इससे उनके लिए सुविधा हो जाएगी और ये एक सिंप्लीफिकेशन मेजर है छोटे बिजनेसेस के लिए। तो आपने 20 लाख तक का जिसका टर्नओवर है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया है, तो वो कारोबार कैसे करेगा? मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे समझना चाहें, मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं और मेरा पूरे साल भर का टर्नओवर मान लिया केवल 15 लाख रुपए है, तो मैं क्या कोई जीएसटी नहीं करूंगा, कोई कागज नहीं रखूंगा, कुछ भी रिटर्न नहीं भरूंगा, मेरा काम कैसे चलेगा? उदाहरण के तौर पर देखिए, जहां तक कागज रखने का सवाल है, कोई भी जो अपना बिजनेस करता है वो अपनी बिजनेस पर्पस के लिए तो अकाउंटिंग करेगा ही। बिजनेस संभव नहीं है कि वो अकाउंटिंग के बिना हो पाए। लेकिन सरकार की ओर से आपके ऊपर, चूंकि आपको हम जीएसटी के क्षेत्र, जीएसटी के से बाहर रख रहे हैं और आप जो मिनिमम टर्नओवर है आपको छोटा मानकर आपको ये सहूलियत दी जा रही है कि आपकी सप्लाई पर ना कोई टैक्स लगेगा, ना आपके ऊपर कोई कंप्लायंस बर्डन डाला जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ना रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता होगी, ना रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी और आप अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। जहां तक जीएसटी का प्रश्न है, जीएसटी का कोई कंप्लायंस आपके ऊपर नहीं है, ना कंप्लायंस लोड है, ना टैक्स लोड है। तो पहली कैटेगरी तो सर ये हुई कि जो 20 लाख तक का टर्नओवर है। अब दूसरी कैटेगरी आती है जो 20 से 50 लाख के टर्नओवर वाले हैं, जिनको आपने ये नई सुविधा जो दी है, जिनको एक शायद सिंपल सा फॉर्म भरना होगा, ये डिक्लेयर करना होगा कि मैं इस सुविधा का लाभ लेना चाहता हूं, और उसके बाद क्या वो टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे, कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि शायद उसमें भी कैटेगराइजेशंस हैं। देखिए, उसमें कैटेगराइजेशन है और जैसा मैंने बताया कि 20 से 50 लाख के बीच के टर्नओवर के जो लोग हैं, इसमें ट्रेडर्स को मूल तौर पे ये सुविधा दी गई है, रेस्टोरेंट्स को सुविधा ये दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी निर्णय होना है कि किस किस क्षेत्र को देंगे या नहीं देंगे। ये चूंकि क्रेडिट चेन से बाहर होते हैं, इसलिए न ये क्रेडिट ले पाएंगे और न ये क्रेडिट पास ऑन कर पाएंगे। तो जनरली कॉम्पोजिशन में जो भी ऑपरेट करेगा वो अपना टर्नओवर के हिसाब से टैक्स भरने के बाद जो भी इनवॉइस जनरेट करेगा उस इनवॉइस में
वो जो टैक्स है वो क्रेडिटेबल टैक्स नहीं होगा। उसको दो प्रकार से हो सकता है, या तो उस टैक्स को दिखाया नहीं जाए, और दिखाया जाए तो बता दिया जाए साफ शब्दों में उस इनवॉइस में कि इस पे क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा। तो सर अगर हम सरल भाषा में ये समझना चाहें कि 50 लाख तक के टर्नओवर की कोई एक दुकान है और उसके बगल वाली 1 करोड़ रुपए तक की दुकान है, तो अगर मैं 50 लाख वाले से अपनी खरीदारी करता हूं तो वो मुझसे टैक्स नहीं वसूलेगा और 1 करोड़ वाला टैक्स लेगा जीएसटी? नहीं, दोनों टैक्स लेंगे। अच्छा। लेकिन 50 लाख वाले के लिए कॉम्पोजिशन में जो है एक अलग रेट होगा, और जो 1 करोड़ वाला है वो रेगुलर जीएसटी स्कीम के तहत है, तो वो जो प्रोडक्ट आपको बेचेगा उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन करेगा, उसका रेट तय करेगा। वो बड़ा है, वो कंप्लायंस कर सकता है और वो टैक्स क्रेडिट भी पास कर पाएगा। तो दोनों की इनवॉइसेस अलग तरीके की होंगी और शायद मूल्य में भी थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन में है उसकी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन कम होगी, और जो कॉम्पोजिशन से बाहर है, जो बड़ा है, उसकी जो स्टैंडर्ड रेट उस प्रोडक्ट पे लगती है वो लगेगी, उस सप्लाई पे जो गुड्स और सर्विस के है वो लगेगी। क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये जो सवाल जवाब आपने किए हैं हमारे एक्सपर्ट से, उसको सीधे एड्रेस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Welcome back to Economy. Today we are discussing about the importance of GST, and also we're getting in certain questions on our social networking handle. So without any delay, let's take those questions which you've been setting on our Gmail and Twitter handles. Let's have a look at this question. The first question is on our Gmail handle. Why there is anti-profiteering provision in the GST bill? Pradyumna Mishra, in fact. Mr. Sinha, if you can answer that question. See, anti-profiteering measure is a consumer protection measure, and generally whenever GST is rolled out, or VAT as it is internationally called, whenever it is rolled out, this kind of provision is there in the law. The reason is GST is an indirect tax, and the burden of tax is to be passed on to the consumer by the seller. Now, if it so happens that post GST the rate of tax on a certain commodity falls, then the benefit of that reduction in the tax must flow to the customer. Whereas it will be possible for traders or manufacturers not to pass this benefit. Therefore, to ensure that this benefit of reduced taxes wherever it is there, this kind of measure is provided in the law. But this is not something which will be used indiscriminately, nor does it government intends to give discretionary powers for operation of this provision. This provision is only a safeguard which in extreme situations only is likely to be used, but is a consumer protection measure and is part of standard GST design across the world.
Well, basically to protect the consumer. सर थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर पाए हमें कि ये एक्चुअली प्रोविजन है क्या, और इसमें आपने लॉ में क्या प्रोविजन किए हैं कि क्या हो सकता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, एक्चुअली एंटी प्रॉफिट या प्रॉफिटियरिंग आप किसे कहेंगे? जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, लॉ में अभी इतना ही बनाया गया है कि सरकार किसी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को या नई अथॉरिटी बनाकर ये अधिकार दे सकती है कि क्या जहां टैक्स के रेट घटाए गए हैं उसके कारण जो कंज्यूमर को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं पास ऑन हुआ है तो इसकी इंक्वायरी कर सकती है। अभी केवल सरकार ने लॉ में ये प्रोविजन डाला है, एम्पावरमेंट डाला है, ना अथॉरिटी बनाई गई है, ना किसी अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है। और रेट ऑफ प्रॉफिट भी तय नहीं किया गया, किससे ऊपर नहीं कुछ करेंगे तो प्रॉफिटियरिंग माना जाएगा? नहीं, वो भी तय नहीं किया गया है। एट प्रेजेंट वी हैव ओनली क्रिएटेड द बेसिक लीगल स्ट्रक्चर दैट अगर इसकी आवश्यकता पड़े, क्योंकि देखिए कानून बार बार नहीं बनता है, पार्लियामेंट में जब कानून बनता है तो एक ही बार बनता है, तो हमें जो लीगल स्ट्रक्चर बनाना है वो हमने बना लिया है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं ये देखना होगा, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ट्रेड ऑनेस्टली जो भी टैक्स बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं, क्रेडिट बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा और इसके इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Let's take other question. This question is on our Twitter handle. Getting in questions continuously. Let's have a look at the second question on our show at this moment on Twitter handle. This question is by Soumya Pandey. I think Aditya Ganeshan. Electricity sector or power sector will be benefited by GST or not? I think Mr. Professor Vallabh, if you can answer this question. See, electricity basically is not included in that. Yes. So naturally, whatever the tax component, you will not be able to get the input credit on that. First thing. Second thing, just a small comment on my last question when you were talking about anti-profiteering. What he had mentioned is 100% correct, but there is for example, somebody saves cost on logistics. Now, is that savings has to be passed to the consumer or not? That is something which is a gray area. Whatever you are saving tax, provisions are there clear cut. But if for example, because of my movement, I had saved 40% of my logistic cost, or because of my warehousing, because now there is no scope of small warehouses. There will be a big size warehouses across the country, so that depot transfer and that era is gone. So because you will be having economies of scale in the big warehouses, so if you are saving that some cost in that, how much component is, for example, if a company decides, no, I don't want to transfer this to the customer, I will enjoy on my own. So that is something which is creating a lot of debate in the tax and the academic circle. Whatever regarding lower tax structure, that is true. And electricity question, we had already responded that electricity, alcohol, for that matter, real estate sector, education, and last but not least, the petroleum products are not covered under the current GST. मुझे शायद आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर सोलर इक्विपमेंट्स हैं जो कि पावर सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, पावर सेक्टर को जीएसटी के बाहर रखना, इसका क्या मतलब है? या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, अभी तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते हैं अपने अपने राज्यों में, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी, आइडियल जीएसटी इफ यू हैड, यू विल हैव ऑल द सेक्टर, सारे सेक्टर जीएसटी के अंदर होते और हर प्रकार का क्रेडिट एक दूसरे में फ्लो कर जाता। लेकिन इस वक्त केंद्र और राज्यों के बीच में जितनी अंडरस्टैंडिंग हो पाई, सहमति बन पाई, उसके हिसाब से ये जीएसटी बना है। इलेक्ट्रिसिटी अभी जीएसटी के बाहर है, पेट्रोलियम बाहर है, तो उसके कारण थोड़ा कैस्केडिंग ऑफ टैक्स होगा। बट ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, और जैसे जैसे जीएसटी स्टेबलाइज करता जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी टैक्सेस भी इसमें सबस्यूम होती जाएंगी। जीएसटी अपने आप में एक इफिशिएंट टैक्स है, और जैसे जैसे राज्यों सरकारों को और व्यवसाय को इसमें लाभ दिखने लगेगा और इसकी इफिशिएंसी से गेन्स इकोनॉमी में आने लगेंगे, मुझे लगता है बाकी टैक्सेस भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबस्यूम हो जाएंगी। और ये इस वक्त जर्नी शुरू करने का पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जीएसटी के बाहर है, बट शायद आगे ये अंदर भी आ पाए, और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे लिए जाएंगे।
Well, Mr. Sinha, another important space is about the the rules on the draft rules on the valuation. Now, if you can demystify the whole thing on the valuation, because according to the rules, it says the GST will be applicable on the price of the item, in fact, and without taking into consideration any of the exchange prices as well, and then reduction in that price as well. In such a scenario, how do you think this will benefit the consumer at the end of the day? देखिए, जीएसटी का जो मूल सिद्धांत है वैल्यूएशन का, वो ये है कि आप कितने वैल्यू पे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, मैं उसी जो कंसिडरेशन आपको मिला है, जो उसके लिए आपको प्राइस मिला है, उसी प्राइस पे मैं टैक्स ले लूंगा। लेकिन जो कंसिडरेशन है वो आपके रिलेशनशिप से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होना चाहिए, और उस कंसिडरेशन में किसी भी और तरह का कलरेबल वो कंसिडरेशन किसी और कारणों से एक्चुअल कंसिडरेशन से कम नहीं होना चाहिए। तो 90-95% केसेस में जो इनवॉइस प्राइस है उसी पर टैक्सेशन कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस में और कुछ खास इंडस्ट्री के सेगमेंट्स के लिए वैल्यूएशन की अलग सुविधा दी गई है। जैसे मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन में कुछ कंसिडरेशन बायर खुद पे कर रहा है और कुछ कंसिडरेशन बायर के बिहाफ पे कोई तीसरा व्यक्ति पे कर रहा है, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति है उससे बायर की थोड़ी सी देनदारी है। तो 100 रुपए अगर बायर पे कर रहा है और 20 रुपए वो तीसरा व्यक्ति पे कर रहा है, तो प्रश्न ये है कि टैक्स किस पे लगना चाहिए, 100 पर लगना चाहिए या 20 पर लगना चाहिए या 120 पर लगना चाहिए। तो ये जो गुड सप्लाई हुआ है, इसका कंसिडरेशन सेलर के पास कितना आ रहा है, 120। तो वैल्यूएशन इन स्थितियों को निर्धारित करता है कि यहां पे 120 पर टैक्स लिया जाएगा, न कि 100 पर या 20 पर। उसी प्रकार से मान लीजिए जब वैल्यू रिजेक्ट किया गया, उसके बाद आपको किसी चीज का वैल्यू निर्धारित करना है, तो उसी तरह का सामान बाजार में कितने मूल्य पे बिक रहा है उसको एक निर्धारण का तरीका बनाया गया है। आइडेंटिकल एंड सिमिलर सप्लाईज, उस पे क्या वैल्यू पे मार्केट में अंडर सिमिलर मार्केट कंडीशन, सिमिलर कमर्शियल लेवल जो बिक रहा है, उस पे ये वैल्यूएशन किया जा सकेगा। अगर ये भी संभव नहीं होगा तो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड इसका वैल्यूएशन किया जा सकेगा, और कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड भी नहीं हो पाए तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसके बेस्ट जजमेंट पे कर दिया जाएगा। तो जो वैल्यूएशन का मेथडोलॉजी है वो बड़ा स्टैंडर्ड है और ट्रेड इसको जानता है। वैट और एक्साइज और सर्विस टैक्स में इस तरह के प्रावधान हैं। उन्हीं प्रावधानों को मिलाकर, जो अच्छे प्रावधान है उन सबको मिलाकर वैल्यूएशन के नियमों का जीएसटी में शामिल किया गया। प्रोफेसर वल्लभ कुछ कमेंट? मैं ये कह रहा था कि जो वैल्यूएशन है वो मोर और लेस जो एक्साइज के वैल्यूएशन रूल्स है, ट्रांजैक्शन, फेयर वैल्यू, वहीं से मोटे मोटी रूप से वहीं से लिए गए। But the question which you asked is regarding the consumer items, because there is a debate going on. That, for example, I got it. The question. For example, I bought a Apple phone. Now, if I give the old phone, I will be getting a concession of around 5,000 rupees. So, if I buy a new phone for 25,000 by giving my old model, and the same model which I purchased without giving, the price is 35,000. So is the transaction value is 35,000 or 25,000? Under the new valuation norms, it is 35,000. So the consumer durable industry is having some sort of suspicion, because earlier they used to give the taxes only on 25,000. Now the transaction will be treated as 35,000. So that is something. So that is the reason they are little bit having a suspicion that what should. But you know, valuation is a very delicate exercise, and it all depends between the buyer and seller. And the only universal thing for good valuation, which can be applied anywhere, that arm's length transaction between knowledgeable willing buyer and knowledgeable willing seller, that price is called as a right valuation. अच्छा, ये जो प्रावधान है, जिस प्रावधान पे ये प्रश्न आपने किया और जिसका प्रोफेसर, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या प्रावधान है। मान लीजिए 24,000 रुपए में एक नया फोन मिलता है, उसी ब्रांड का फोन एक्सचेंज वैल्यू पर 20,000 में अवेलेबल है, और आप एक्सचेंज के लिए हमारे पास आते हैं, मैं ये प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं, तो मैं एज अ सेलर मेरे पास क्या कंसिडरेशन आ रहा है? मेरे पास दो कंसिडरेशन आ रहे हैं। आप जो मुझे 20,000 रुपए दे रहे हैं वो एक कंसिडरेशन है, दूसरा कंसिडरेशन जो मेरे पास आ रहा है वो आपका पुराना फोन है। इसलिए मैं किस कीमत पे बेच रहा हूं ये इन दोनों को जोड़कर बनेगा।
नाउ इन दोनों को जोड़कर बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो 20,000 में इस पुराने फोन को मार्केट में उस वक्त कितने में बेचा जा सकेगा, उसको वो मान लीजिए 4,000 है तो 24,000 बन गया, तो 24,000 पे मैंने टैक्स कर दिया। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ये जोड़ने का तरीका ना करके मैं ये नया फोन मार्केट में कितने का बिकता, वो 24,000 का है तो मैंने आपको 24,000 पे टैक्स लगा दिया। अभी मैंने ये प्रिज्यूम किया है कि जो आपने पुराना फोन दिया वो 4,000 पे बिक सकता है मार्केट में और 24, इसलिए दोनों बराबर हो गए तो वैल्यूएशन में प्रॉब्लम नहीं है। बट द नेचर ऑफ मार्केटिंग इंडस्ट्री इज सच that the discounts are very many times artificial. If the price is shown as 28,000, then exchange offer is at 20,000 and the exchange product actually sells in the market for 1,000 rupees, then the extra discount which the industry is giving after moving the price up is what is causing concern. So marketing में ये regularly एक marketing technique है, discounting, discount pricing which gives you a sense that I am getting a deep discount improves the sales. So this is a conflict which lot of people from consumer industry have noted, and in their view this is a dampener. So I'm quite sure in the next meeting, whenever the legal committee meets, it will be deliberated. But I have told you that there are two possible ways of doing it, and we have chosen one particular path. That path, trade is not very happy. I have noted it. But I personally feel that this, from the perspective of consumer, is a better path because this does not allow industry to give discounts which are artificial in nature. चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अर्थ जगत की कुछ बड़ी खबरें हैं उन पर भी निगाह डालेंगे। साथ ही साथ ये चर्चा जारी है। आपके सवाल लगातार हमें मिल रहे हैं और जीमेल और ट्विटर के जरिए आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल जीएसटी से जुड़ा होना चाहिए। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आइए अब निगाह डाल लेते हैं हर जगत की कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। टॉप लाइन से पहली खबर, साल 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गईं। 7 सालों में रिकॉर्ड सड़क निर्माण। इस साल गांव में करीब 59,000 किलोमीटर सड़क बनने की उम्मीद। एक दिन में 150 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मार्च महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मांग 5 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ी। निकेई मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स 52.5 के स्तर पर। फरवरी में ये 50.7 के स्तर पर था। 50 से ऊपर का आंकड़ा दिखाता है विस्तार और 50 से नीचे का मतलब है मांग में हुई कमी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.15% की कटौती करने का लिया फैसला। एसबीआई का बेस रेट 9.1% के स्तर पर। एचडीएफसी ने भी 0.25% ब्याज दर घटाने का फैसला लिया। कटौती के बाद 9% के स्तर पर पहुंचा बैंक का बेस रेट। आरबीआई की समीक्षा से पहले बैंकों में ब्याज दरों में कटौती का दौर।
बीते साल 3 करोड़ 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन हुए जारी। अभी तक के इतिहास में एक साल में जारी गैस कनेक्शंस की ये सबसे ज्यादा संख्या। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिले कनेक्शंस। अभी पूरे देश में 72% लोगों तक पहुंच पाई है एलपीजी सिलेंडर की सुविधा। और आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस में नहीं थम रहा है वेतन का विवाद। नए सीईओ के वेतन भत्ते को लेकर उठे सवालों के बीच कंपनी को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की चुनौती। संस्थापक नारायण मूर्ति ने वेतन में बढ़ोतरी का किया विरोध, जबकि मौजूदा सीईओ विशाल सिक्का ने सीईओ प्रवीण राव के बचाव में दिया गया। Well, we're getting in questions. Let's take the questions on our social networking handles as well. Let's quickly have a look at those questions back to back so that the guests can answer those questions. This question is on a Gmail handle. Please explain the concept of input tax credits and goods and services tax. Also, how GST will reduce the cascading effect. Professor Vallabh, if you can take this question and answer it. See, for example, when a commodity is produced, it passes through various value creations processes, small. Means a product is manufactured, then it's sent to packaging, the packer is going to send to distributor to retailer, and retailer is going to sell it to the final customer. During this process, there may be the people in different states. For example, manufacturer in X state, distributor in Y state, and retailer in Z state, and final consumer may be in A state. So what is going to happen, that the manufacturer used to produce, so he used to pay excise, which is earlier government is saying the central list tax. Then this distributor, then retailer, distributor is in another state, then they will be having application of the VAT. This is going to, the retailer is going to sell it to the final customer. They will be having the sales tax of the local sales tax of the state government. So what was happening, that various taxes which were deposited by the various parties, the next party is not getting the benefit of that tax. Although when this manufacturer is selling to the distributor, he is selling plus excise, but he might not be able to get the benefit. So we used to call this as an input tax credit, because they are in very different jurisdiction. One is central tax, another is the state governed tax. So after GST, all these parties are going to get the previous tax credit. So if they are going to get the previous tax credit, the final commodity price is going to come down. If that is going to come down, the final consumer is going to have it at a lower price. Earlier, because the input tax credit was not there, so commodity, because nobody is going to pay from his pocket, so ultimately the consumer is going to bear all those things. So especially the fast moving consumer items and the items which were used by the common man of the country, they will be going to come, the prices of those products are drastically going to come down because of this input tax credit, which is now available in the GST regime. Right. Let's take other question as well. We are getting this question again on our Twitter handle. Let's have a look at that question too. This question is by Vinay Thakur. What will the effect of GST on travel industry in India, Professor Vallabh? See, travel industry also, as such, they might be under the jurisdiction of the service tax. Now, there is a suspicion in the because the fitment of the goods are not final, because right now service tax is 15%. So if we go to the nearest next into the 18% level, the tax, the output is the tax money or the total indirect tax impact to the final customer is going to go up. So the travel industry as such may have this impact because of the service and the where they are going to get the fitment. They may get the fitment into 12% regime also. Then the second, the travel industry and the basic price. For example, he is a travel agent for the airlines or for the railways or for the buses. So there the final price of the final product of the ticket is going to come down. So there will be a mixed thing. But if we take only the service tax component, and if we assume
that then the entire thing will be shift to the next level, which is at 18% tax regime, then naturally the prices is going to go up. Absolutely. May I intervene? Please proceed. I have a little bit of a contrarian view on this. Even if you take only the service tax component, and even if you presume that it goes to 18%, though fitment has not happened, and therefore that's only a presumption. Presumption, yes. The input tax credit of the VAT tax flows will give considerable cushion, and therefore price rise is something which I at least do not foresee in travel industry. There is a very high level of cascading which takes place at present because of VAT paid on goods, and travel industry does use inputs which are in the office, in other forms. So that's what I was telling, because the final multiple forces will be at play. Reduction in cascading, efficiency gains because of scales. So price rise is a worry, but I am reasonably certain that reduction in cascading and efficiency gains will ensure that there is no price rise. We get some clarity once the fitment is done. Last final comment, like restaurant. People used to say restaurant will be expensive, but it may be possible that the benefit of that utensil which you are going to buy for making the curry, that prices of that is going to come down. So how much is going to be set off, I can't comment, but there will be a mix. Some, if service tax goes to 18, and if it goes to 12%, we don't know. So if it goes to 18%, and if the benefits here are more, then there will be cheap. If the benefits here are not able to compensate this, there will be a rise in the price. Provided they also, supply the benefit to the consumer. But then when we get some clarity, once the fitment actually happens, and then maybe next meeting could give even more further clarity. We're getting more questions. I would request my guests to give brief answers so that we can accommodate more questions. Let's take a look at other question, Naf. This question again is on a Twitter handle. If GST is implemented in India, can we cover from other countries crisis like Chinese crisis, Brexit exit, or US recession? In fact, more of a macroeconomic question. In fact, Mr. Sinha, if you would okay. You see, GST inherently makes your economy more competitive, and if I can use the phrase, more anti-fragile. And therefore, I'm quite certain that our ability to take hit from crisis which happens outside India will be much better in post-GST regime. Right. Let's take a look at other question. This question perhaps is on our Gmail handle, and it must be in two parts. Let's have a look at this question quickly so that our guest can answer that question. If there is a provision of SGST, that is, state can also imply taxes on goods with CGST, then what is the point anyway in the second part of the question? Okay. I think you got this question. In fact, let's take that second part as well. Implementing GST single tax in single nation. Lachinder Pal Singh, Mr. Sinha. Okay. You see, GST is basically subsuming taxing rights of both center and state. Absolutely. When we say single tax, what we mean is that on the same transaction, on the same value, at the same rate, both center and state will impose tax, and therefore it in effect is a single tax, but equally well preserves the federal rights of the states as well as the taxing rights of the center. So it simplifies, brings all the taxes together, and there would be single assessment in GST. One assessee will be assessed by one officer, and he'll assess him for both SGST and CGST. So for all practical purposes, it is one tax, but to preserve the federal structure and the taxing rights of the state, both SGST and CGST will be levied. Right. Let's have a look at the other question as well. We're running out of time. Let's take one final question. This is on Gmail. I think it is from Nikhil Avasti. Let's have a look at that question too. Due to the implementation of GST, is there any loss in the revenue? This is one major concern as well, in fact, with respect to the revenues. As far as revenue is concerned, the basic structure of tax rates is already known. The rates will be fitted to achieve a revenue neutral rate. That means whatever revenue was coming pre-GST will remain the revenue post-GST, and even at commodity level, the rate of taxation is likely to remain the same in the fitment, except for a few commodities. Some states which are exporting state are worried, but they are also large consuming and developed states, and therefore they even may not face a revenue loss. But should there be a revenue loss, there is a compensation cess which will be
imposed on few luxury items, tobacco items, etc. And that money will be available for compensating the states if they have revenue loss, if any. So the overall structure does take care that there is no serious revenue per se revenue loss to the country or the state. Right, anyway. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार सिन्हा जी इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए आपका, और प्रोफेसर वल्लभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही है फिलहाल। इकॉनमी टुडे का आज के इस खास सेगमेंट में सिर्फ इतना है। मुझे और मेरे सहयोगी वेंकट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।